Good morning to all of you. Am I clearly audible? Okay, so today we will continue with our theory session. So there will be two theory session today. One is now and the another one is 255 to 355, which is already a regular session, right? Okay, so as of now we have seen, let me share my screen here. Okay, so as of now we have seen the network address and network address translation, right? We have seen कि network address क्या है, network address translation क्या है, उसका काम क्या है, and how it works. So we have seen that, right? Now the second is, we can say, the another protocol that is used in the network layer, that is an ICMP protocol. But before that, let me just open my tab here for the better understanding. Just 1 minute. Find my pencil. Okay. So the next topic is ICMP, that is the Internet Control Message Protocol. Is my screen visible to all? Okay. So इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल क्या है? वी कैन से कि जैसे हमने टीसीपी में दो प्रोटोकॉल्स देखे थे, दैट इज द टीसीपी एंड द यूडीपी, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हियर, right? We have seen the two protocols in the transport layer, that is the TCP protocol and a UDP protocol, right? वैसे ही network layer में भी उसके protocols होंगे, right, for the smooth working of transmission of a package, right? So in the network layer there are IGMP, ICMP, IP and ARP protocol. अभी ICMP की पोजीशन क्या है नेटवर्क लेयर में? So first one is IGMP protocol, second is ICMP, third is IP and fourth is ARP, right? So अभी यहाँ पे हमको पढ़ना क्या है? ICMP protocol. So first thing we can say it's a internet control message protocol, right? इसका full form आपको पता होना चाहिए. Let me just write over here. Internet control message protocol, right? Now ये क्या है? It is a network layer protocol. It is used for error handling in the network layer and it is primarily used on the network devices such as routers, right? Generally ये किसके ऊपर यूज होता है?
राउटर्स के पर यूज होता है, राइट। नाउ वन थिंग वी कैन से दैट समटाइम्स इट हैपेंस कि कोई भी डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, राइट। सो समटाइम्स इट हैपेंस कि कोई एरर आती है, राइट। तो वो एरर को रिपोर्ट कौन करता है? सेंडर को कोई रिपोर्ट करने वाला तो होना चाहिए। लेट्स से दैट इफ द सेंडर होस्ट हैज सेंड सम पैकेट, राइट, सेंडर wants to send a message to the destination, but जो राउटर है वो सेंड नहीं कर पाता है, राइट। राउटर is we can say couldn't send the message to the destination. So in that case, router send the message to the sender and that message couldn't be sent to the destination. क्यों नहीं हो पाता है? That because there is some error in between, right? So वो error report कौन करता है? That is done by the ICMP protocol, right? ये आपको याद रखना है. So that error reporting can be done by using the protocol which is we called it as a ICMP, right? अभी जो IP प्रोटोकॉल है वो भी एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल ही है, बट उसमें एरर रिपोर्टिंग या एरर करेक्टिंग मैकेनिज्म नहीं है. और ये मैकेनिज्म किसमें है? ICMP में, राइट. सो वी कैन से इट इज जस्ट IP जो है वो इट इज जस्ट यूज्ड टू कन्वे द इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल, इफ समवन वांट्स टू सेंड अ मैसेज to the destination, the message is somehow stolen between the sender and the receiver. So if no one reports the error, the sender might think that the message has reached to the destination. And if someone in between reports the error, अगर कोई रिपोर्ट कर देता है तो सेंडर को पता चलता है कि भाई पैकेट जो है वो लॉस्ट हुआ है और मुझे दूसरी बार सेंड करना है, और आई नीड टू retransmit that packet, right? So that is done by the ICMP. So this is we can say about the ICMP. अभी ICMP ये मैसेजेस जो है वो दो टाइप के उसके मैसेजेस है. एरर रिपोर्टिंग मैसेज एज इट इज रिटन ओवर हियर, दो टाइप के मैसेज वो देता है, एरर रिपोर्टिंग मैसेज एंड द क्वेरी मैसेज. एरर रिपोर्टिंग मैसेज तो आप ऑलरेडी समझ ही गए होंगे कि राउटर जब कोई प्रॉब्लम को एनकाउंटर करता है तब जो मैसेज जनरेट होता है एंड इट इज गिवन टू द सेंडर, दैट इज अ एरर रिपोर्टिंग मैसेज. और क्वेरी मैसेज क्या होता है? are those messages we can say that help the host to get the specific information of the another host, right? अगर मान लो कि मैं कोई पैकेट भेज रही हूँ पर मुझे पता ही नहीं है कि जो सामने वाला होस्ट है वो लाइव है कि नहीं, राइट? वो इंफॉर्मेशन अगर मुझे नहीं पता है तो उसके लिए मैं क्वेरी रेज करूंगी एंड दैट क्वेरी रेज्ड बाय मी दैट इज रेफर्ड टू एज अ क्वेरी मैसेज, राइट? So there are two types of a message in the ICMP, that is a query error reporting message and the query message, right? ये सारी चीजें PPT में नहीं दी गई है, that's why I am referring the OneNote. Now if you can just see over here type and code. अभी ये जो हम लोग मैसेज फॉर्मेट पढ़ेंगे उसके अंदर दो चीजें आएंगी. सो हर एक के लिए एक फॉर्मेट रहता है, दैट यू ऑल नो, राइट? हमने डेटाग्राम पढ़ा तो डेटाग्राम के लिए अलग फॉर्मेट था, हमने IPv4 पढ़ा तो उसके लिए एक अलग फॉर्मेट था, TCP और UDP पढ़ा तो TCP मैसेज फॉर्मेट, UDP मैसेज फॉर्मेट, ये सारी चीजें हमने देखी थी, राइट? दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. Now we are using the ICMP protocol in the network layer, so that also has some message format. So उसके लिए भी कोई एक पर्टिकुलर मैसेज फॉर्मेट होगा जिसकी वजह से ICMP प्रोटोकॉल यूज करके हम वो मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट? सो यू कैन सी हियर दिस इज द मैसेज फॉर्मेट ऑफ ICMP प्रोटोकॉल. टाइप, that is the what type of message it is. Code, checksum, rest of the part is the header and the data section, right? So यहाँ पे टाइप क्या डिफाइन करता है? We can say it defines the ICMP message type, right? ये message type define करता है that the values range from 0 to 127 are defined in ICMP v6, right? So that information are there in the type. Code क्या define करता है? It's a subtype of the ICMP message. उसका subtype define करता है. checksum कि whether जो message है उसमें कोई error है कि नहीं, right? और हेडर में कुछ कुछ चीजें ऐड होती है, राइट? फ्लैग बीट है, फिर मर्जिंग का बीट है, राइट? दैट बीट्स आर देयर इन द हेडर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. एंड डेटा सेक्शन कंटेन्स द पेलोड, दैट इज प्योर डेटा, राइट? सो दैट इज वी कैन से अबाउट द मैसेज फॉर्मेट. अभी हमने यहाँ पे बोला कि एरर रिपोर्टिंग. सो कौन कौन सी एरर रिपोर्ट हो सकती है सेंडर के पास?
तो फर्स्ट एक तो ये बोल सकते हैं कि डेस्टिनेशन जो है वो अनरीचेबल है, डेस्टिनेशन तक जाने का रास्ता वो रीचेबल नहीं है, तो डेस्टिनेशन अनरीचेबल। सोर्स क्वेंच, दैट मीन्स सोर्स से जब पैकेट निकलता है वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, तो दैट इज वी कैन से ऐसी भी एरर हो सकती है। टाइम एक्सीडेड, ज्यादा टाइम चाहिए होगा ये पैकेट को वहां तक पहुंचाने के लिए। पैरामीटर प्रॉब्लम्स, तो समटाइम्स इट हैपेंस कि कुछ कुछ पैरामीटर्स जो है जैसे कि कंजेशन है, प्रॉब्लम इन नेटवर्क, वो भी अफेक्ट कर सकते हैं, उसकी वजह से भी एरर रिपोर्ट करनी पड़ती है। रीडायरेक्शन, यानी कि कोई स्पेसिफिक अगर डायरेक्शन नहीं मिलता है पैकेट को, उसकी वजह से पैकेट लॉस्ट हो जाता है, तो ये भी एक एरर रिपोर्ट हो सकती है, राइट। So these are the, we can say, the type of the error reporting that can be done by the ICMP protocol. So this is all about the ICMP. ये ICMP जो क्वेश्चन है वो आ सकता है 4 मार्क्स में, राइट। तो यही चीजें यहाँ पे भी लिखी है, ये आने के चांसेस बहुत कम है। दिस इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। तो इफ यू कैन सी हियर 3 फील्ड्स, यू कैन सी टाइप, कोड, डिस्क्रिप्शन, यानी कि हर एक टाइप और कोड का कुछ एक मीनिंग निकलता है। तो इफ इट इज टाइप 0, कोड 0, दैट इज इको रिप्लाई पिंग। If it is type 3, then it is something which is related to the destination. अगर आप type 3 में देखो तो वो सारी चीजें destination से related होगी, if you can observe this। और कोड उसका चेंज होता रहेगा। टाइप 3 है, कोड 0 है, डेस्टिनेशन नेटवर्क अनरीचेबल। टाइप 3 है, कोड 1 है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। टाइप 3 है, कोड 2 है, डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल अनरीचेबल। सो इफ यू माइट ऑब्जर्व, वो जो सारा 3 टाइप है, टाइप 3 है, वो डेस्टिनेशन के रिलेटेड है, राइट। Rest of all the things which is something different, which we have seen in the ICMP format, message format, right, वही सारी चीजें है। तो यहाँ पे एक रूट ट्रेस कैसे होता है वो दिखाया है, दिस इज जस्ट डायग्राम, राइट। So this is all about the, we can say, ICMP, right। कुछ चीजें पीपीटी में नहीं थी वो मैंने यहाँ पे कवर कर दी है, जैसे कि यहाँ पे मैसेज फॉर्मेट नहीं था, टाइप्स ऑफ मैसेज नहीं थे, that I have covered in the OneNote, right। Now the second one is, we can say, hierarchical routing। so यहाँ पे आप hierarchical से क्या समझते हो? Yes, anyone? Hierarchical routing? Subdirectory, okay, okay, at one point we can say, सो हेरार्किकल को हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो एक डिवाइड एंड कंक्यूर स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। दैट मीन्स वी कैन से द राउटिंग दैट इज परफॉर्म्ड ऑन अ मल्टीपल लेवल्स, राइट। सो लेट्स सी दिस, because of the global nature of the internet system, it becomes very difficult to centralize the system management and operations, right। That's why we need to perform the routing in the multiple levels, right। For this reason, the system must be hierarchical, such as it is organized into multiple levels, as I said this thing only, with several group loops connected with one another at each level, right। So ultimately हम ऐसा बोल सकते हैं कि divide करके उसको पूरा routing perform किया जाता है, right, into a different regions, or we can say for a particular region or a particular domain the routing is performed when it is divided into the multiple levels, right। So when the routing is performed on the multiple levels with several
groups or group loops, or we can say the particular region or a specific region, then that type of routing is commonly referred to as a hierarchical routing. अभी जब हम hierarchical routing की बात करते हैं तब दो चीजें यहाँ पे आती है, that is inter domain routing and the intra domain routing. अभी यहाँ पे इंटर डोमेन और इंट्रा डोमेन राउटिंग हम कैसे बोल सकते हैं, यू कैन ऑलरेडी सी इन दी फिगर ऑल्सो कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चीजें हैं वो मेंशन की गई है कि इंटर डोमेन और इंट्रा डोमेन. तो पहले तो हम बात करते हैं इंट्रा डोमेन, राइट. ये चीजें बहुत ही सिंपल है, सिर्फ अगर दो नेम को ही समझ ले हम सारी चीज को समझ सकते हैं. इंट्रा मतलब क्या, वी कैन से विद इन द डोमेन or within that specific area. So when we say that the routing algorithm performs within their domain only, then it is referred to as an intra-domain routing. और inter मतलब क्या, we can say that when routing algorithm is performed or works within or between the other domains, then it is referred to as a inter-domain routing. राइट, ये क्लियर है. नाउ द अनदर थिंग वी कैन से दैट कि जब वो तो पता चल गया कि राउटिंग जब किसी विद इन डोमेन के अंदर होता है तब उसको इंटर डोमेन इंट्रा डोमेन बोलते हैं, और जब किसी अलग डोमेन के साथ राउटिंग परफॉर्म होता है देन वी कैन से इट्स अ इंटर डोमेन, राइट. अभी ये इंटर डोमेन को हम ऐसा बोल, इंट्रा डोमेन को हम बोल सकते हैं कि जो प्रोटोकॉल जो है इंट्रा डोमेन राउटिंग में यूज होता है दैट इज रेफर्ड टू एज एन इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल. और जो प्रोटोकॉल है वी कैन से the protocol used in inter-domain routing are referred to as an exterior gateway protocol, जिसको क्या बोला जाता है, exterior gateway protocol बोला जाता है, right. So then second thing we can say कि अब क्या बोल सकते हैं कि भाई जो राउटिंग अल्गोरिदम है, राइट, वो स्पेसिफिक डोमेन में परफॉर्म किया जाता है, तो वी कैन से दैट होल सिस्टम इट अटैच्ड विद दैट पर्टिकुलर राउटिंग. So we can say that is an autonomous system, right? Within an autonomous system, the routing is performed. That is an intra-domain routing. And inter-domain, that is within and between the other networks. Whenever the communication takes place within and another network, that is referred to as an inter-domain routing, right? So that is we can say about the inter-domain and intra-domain. Another thing that we can say कि पॉपुलर प्रोटोकॉल्स जो इंट्रा डोमेन में यूज होते हैं वो कौन सा है, रिसोर्स इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल दैट इज RIP एंड OSPF दैट इज द ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट. दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं किसमें, इंट्रा डोमेन में. दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं यहाँ पे दैट इज अ BGP और दूसरा नहीं, BGP एक यूज होता है दैट इज अ बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, राइट. सो you have to remember the protocols also कि इंट्रा डोमेन में कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, दो प्रोटोकॉल दैट इज RIP एंड OSPF, एंड इंटर डोमेन में BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल. So that is all about we can say इंट्रा डोमेन एंड इंटर डोमेन. यहाँ पे सिर्फ फिगर ही दी है और उसकी डेफिनेशन, बट यस यू कैन जस्ट गो थ्रू दी डिफरेंस ऑल्सो, राइट. आप उसका डिफरेंस भी देख सकते हो. So is it clear to all of you up till now? What about others? Please acknowledge me in the chat box.
Okay, next is we can say IPv6. So first of all, starting with the IPv6, we have already discussed the IPv4, Internet Protocol version 4, right? जो हमने already देखा था कि IPv4 क्या है. Okay, so as we all know, with the development of many devices, अभी अब हम देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर है, स्मार्टफोन्स है, राइट? अगर कोई भी हम लोग डिवाइस लेते, वॉशिंग मशीन लेते हैं, रेफ्रिजरेटर ले लेते हैं, एसी लेते हैं, अभी तो स्मार्ट फैंस भी है, स्मार्टफोन्स है, स्मार्ट टेलीविजन है, राइट? सो जो भी डिवाइसेस इंटरनेट की हेल्प से चलता है, दे रिक्वायर्स एन आईपी एड्रेस. उसमें अग्री करते हो, राइट? जो भी डिवाइसेस को इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, उससे आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती होगी, राइट? So with the development of many smart devices in the real world, we can say in the real time, we can say, right, they requires an IP address. तो अभी तक हमारे पास क्या था? We have an IPv4 IP address, which we can say, which have a limited number of address. जितने devices इन्वेंट हो रहे थे, उस हिसाब से हमारे जो IPv4 के IP एड्रेसेस थे, वो कम पड़ रहे थे, right? So that is we can say the first motivation for, we can say, discovering the IPv6, right? So it is already written that 32-bit एड्रेस स्पेस soon be completely allocated. वो जल्दी allocate हो जाते थे, इसलिए हमको ये IPv6 निकालना, डिस्कवर करना पड़ा, राइट? एडिशनल मोटिवेशन, और क्या मोटिवेशन मिला था IPv6 को फाइंड करने के लिए? कि हेडर फॉर्मेट हेल्प्स स्पीड प्रोसेसिंग एंड फॉरवर्डिंग, राइट? हेडर फॉर्मेट में कुछ ऐसे फील्ड डालने से हमारा जो स्पीड प्रोसेसिंग था वो काफी बढ़ गया, राइट? और उसकी क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स भी अच्छे हो गए, वी कैन से चेंज हो गए, राइट? Now, if we talk about the IPv6 datagram format, then we can say fixed length 40 byte of header is there and no fragmentation is allowed, right? So that is we can say about the IPv6. अगर IPv4 की बात करते हैं तो IPv4 कितने बिट का था? That was 32 बिट, राइट? IPv4 एड्रेस कितने बिट का था? 34 bit का, right? That produces, we can say, 4 billion addresses, and the developer think that these addresses are enough, but they were wrong, right? उसको ऐसा लगता था कि 4 billion एड्रेस ये कर सकता है, तो ये 4 billion एड्रेस तो इनफ रहेंगे, but they are wrong. With the invention of this smart devices which uses the internet, we need to assign the IP address to them also, right? और उसकी वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा आईपी एड्रेस की जरूरत होने लगी और 4 बिलियन आईपी एड्रेस हमको कम पड़ने लगे. दैट्स व्हाई द IPv6 वाज डिस्कवर्ड. सो वी कैन से IPv6 इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द आईपी एड्रेस. अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? साइज का डिफरेंस है. दैट इज वी कैन से IPv4 की साइज क्या थी? वी कैन से क्या है? दैट इज 32 बिट एड्रेस, whereas IPv6 की 128-bit hexadecimal address. Again I am repeating it, MCQ में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. The size of IPv6 address is 128-bit hexadecimal address. So remember this thing, right? IPv6 we can say provide a large address space and it contains the simple header. जो IPv4 का header था उससे काफी simple header है, right? IPv4 का हमने format already देख लिया था, that is IPv4 datagram format,
उससे काफी सिंपल है IPv6 का हेडर, राइट? सो लेट्स सी दैट. So this is the IPv6 datagram format. Priority, flow label, next header. अभी यहाँ पे priority क्या है? Priority, that is we can say identify priority among datagrams in flow. Let's say that if the sender has sent the packet, but sometimes it happens कि कुछ packets की priority receiver को ज्यादा होती है, right? So that packets are forwarded first and that packets are put in the field of priority. Flow label, identify datagram in same flow, right? Let's say that if there is one packet and that packet is encapsulated in the frames, but that frame is too large, we need to divide that frame into small units, right? So मान लो कि अगर मैंने 7 यूनिट्स किए, 6 यूनिट्स एक साथ जा रहा है, 1 यूनिट बच रहा है, so obviously I will just put that unit in that flow only. So flow label, that means the label is assigned to every unit of the frame. Next header, identify upper layer protocol for data. जो upper layer से data आ रहा है वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, that is we can say the next header. So you can see this is the datagram format of IPv6. IPv4 से काफी सिंपल है, राइट? IPv4 में बहुत सारी ऐसी चीजें थी, while in the IPv6 it is quite simple. So first is version, second is priority, third is flow label, fourth is payload length, that is the data. Payload यानी कि pure data जिसमें header include नहीं होता है. Next header that we have seen, hope limit, which is we can say similar to that of a TTL, time to live. मैंने ये कंसेप्ट बताया था कि जब कोई पैकेट लूप में फंस जाता है, it just we can say rotating in that specific loop only. For that we need to give the TTL. TTL सपोज मैंने मान लो 26 रख दिया उस पैकेट के लिए, तो हर एक लूप घूमने के बाद that value will be decremented by 1. एक बार चक्कर लगा लिया, decremented by 1, 25, और एक बार लूप में घूम के आया 24, then 23. When it comes to 0, that packet will be discarded from the network. So that is similar to that of a TTL which is used in the IPv4. Source address, obviously the address of the source host which has sent the packet. Destination address, that will be the address of the destination host where the packet needs to be reached at, right? And the data that the sender is sending, that is put in the data field. So the same thing is given over here, right? वही सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे बोली वही चीजें यहाँ पे explain की है. So you can take a reference from that. अभी यहाँ पे difference दिया है दोनों का, so you can also take a reference of this difference कि इसकी size 32 है, इसकी 128 है, इसमें fragmentation होता है, सिर्फ sender और receiver करता है, इसमें सिर्फ sender ही करता है, right? इसमें no packet flow identification है, इसमें packet flow identification available है. So you can just take a reference of that and you can just look at this part IPv4 और IPv6. इसमें काफी MCQs निकल सकते हैं, right? So that is very simple. हमने दोनों अलग अलग देख लिया था, IPv4 भी डिटेल में डिस्कस किया था और IPv6 भी डिटेल में डिस्कस किया है. So it will be very easy to differentiate IPv4 and IPv6. You can take a reference of this slide. Now the another one is DHCP. अभी ये DHCP क्या है? हमारे प्रैक्टिकल लिस्ट में DHCP का एक प्रैक्टिकल भी है, राइट? बट जब हम ये थियरी सेशन में कंप्लीट कर लेंगे, विल परफॉर्म द प्रैक्टिकल ऑफ DHCP. अगर पॉसिबल है तो हम आज थियरी सेशन में ही वो प्रैक्टिकल खत्म कर लेंगे, राइट? इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ 15 to 20 मिनट्स में हो जाएगा एंड इट इज वेरी 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 इजी. बट पहले DHCP समझना जरूरी है. So from the name itself we can say many things about that. Dynamic
होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये कहना क्या चाहता है? डायनेमिकली असाइंस एन आईपी एड्रेस टू ऑल दी होस्ट विच आर देयर ऑन दी नेटवर्क, राइट? नाउ लेट मी जस्ट गिव यू अ जनरल एग्जांपल। अभी ये थोड़ी नेटवर्किंग टर्म्स यूज करूंगी तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज होंगे। लेट्स से कि मेरी कोई कंपनी है, राइट? मेरी कंपनी अभी मेरी स्टार्टअप कंपनी है, सो मैंने 10 पीसीज लिए हैं अपनी कंपनी के लिए और मैंने 10 एम्प्लॉयज को हायर किया है। 10 से कम करूंगी तो चल जाएगा, मैनेज हो सकता है, राइट? नाउ लेट्स से कि मैंने जो पीसी खरीदे हैं, मैं ऑब्वियसली उसमें नेट तो यूज करूंगी, तो उसके लिए मुझे आईपी एड्रेस तो चाहिए होंगे, राइट? तो मेरे पास एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा, मैं उसको बोलूंगी कि भाई सारे पीसी में आईपी एड्रेस डाल दो। So it will be an easy task for a network administrator to give the IP address to all the PC. There are 10 PC. It's easy or not to give the IP address to all the 10 PC? What do you say? 10 PC IP address में किसी को दिक्कत होगी? Yes? Just reply me in the chat box. Obviously not. राइट? सिर्फ 10 पीसी है तो 10 पीसी को मैं आराम से, अगर एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा तो वो 2 घंटे में 10 पीसी को आईपी एड्रेस और उसको कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है, राइट? ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे ले लो, उससे ज्यादा उसको नहीं वक्त लगेगा। लेट्स से कि मेरी एक बहुत ही बड़ी कंपनी है इन विच आई हैव 1000 पीसी, राइट? और मुझे वो सारे पीसी को आईपी एड्रेस देने हैं। So it will be a very headache task to give the IP address to all the 1000 PC, right? वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक बहुत ही हेडेक टास्क रहेगा कि 1000 PC को आईपी एड्रेस देने के लिए, राइट? अगर वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी ले लेता है, then also it will be very tedious task to give the IP address to 1000 PCs, right? सो फॉर दैट उसके लिए एक सोल्यूशन निकला कि भाई एक पीसी कॉन्फ़िगर होगा, राइट? दैट पीसी दैट इज अ डीएचसीपी पीसी, राइट? और वी कैन से द डीएचसीपी सर्वर, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल की वजह से मैंने एक सर्वर को कॉन्फ़िगर किया एंड दैट पीसी will automatically assign the IP address to all the PCs which are there on the network, right? मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो 1000 पीसी थे वो 1000 पीसी को सिर्फ एक पीसी के साथ कनेक्ट करना होगा और वो एक पीसी ऑटोमेटिकली 1000 पीसी को आईपी एड्रेस असाइन कर सकता है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डीएचसीपी। सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी उसका हम वर्किंग देखेंगे कि कैसे होता है, कनेक्ट कैसे करते हैं, डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है, एक साथ इतने सारे आईपी एड्रेस को कैसे असाइन कर सकता है। यू हैव मेनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, बट अभी सिर्फ कंसेप्ट समझो कि दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हम प्रैक्टिकल करेंगे और ज्यादा क्लियर होगा। Okay, so we can say dynamic host configuration, we can say it's a network management protocol used to dynamically assign an IP address to any device which are there on the network, and they can communicate with each other with the help of the IP address. Now, one thing we can say that DHCP automates and centrally manages this configurations. They means they don't need to give IP address manually. As I have said, कि मैन्युअली असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, देयर इज नो रिक्वायरमेंट इफ दे आर यूजिंग द डीएचसीपी बेस्ड नेटवर्क और डीएचसीपी बेस्ड सर्वर। अभी ये डीएचसीपी इंप्लीमेंट कहाँ होता है? ऑन द लोकल नेटवर्क, राइट? एज अ वेरी लार्ज एंटरप्राइज नेटवर्क, जब जहाँ पे ज्यादा पीसी होते हैं, जहाँ पे आईपी एड्रेस देना सारे पीसी के लिए थोड़ा टीडियस टास्क रहता है, एट दैट टाइम द डीएचसीपी बेस्ड नेटवर्क इज यूज्ड और द डीएचसीपी सर्वर इज यूज्ड, राइट? और वो कहाँ पे डिफाइन किया गया है? रिक्वेस्ट फॉर कमेंट 2131 पे। तो यहाँ पे डीएचसीपी के मेनली 4 मैसेजेस है।
होस्ट ब्रॉडकास्ट द DHCP डिस्कवर मैसेज। अगर कोई होस्ट को चाहिए आईपी एड्रेस चाहिए तो वो ब्रॉडकास्ट करेगा कि दैट आई वांट एन आईपी एड्रेस, राइट। सो DHCP सर्वर जैसे ही वो उसको ब्रॉडकास्ट मैसेज मिलता है, DHCP सर्वर रिस्पॉन्ड करता है, उसके पास आईपी एड्रेस है तो DHCP क्या करता है, DHCP ऑफर मैसेज, और वी कैन से DHCP ऑफर मैसेज से वो पर्टिकुलर होस्ट को रिस्पॉन्ड करता है दैट यस आई एम द सर्वर, I can assign you an IP address. Now the host request the IP address DHCP request. तो जैसे ही सर्वर ऐसा बोलता है कि भाई हाँ मेरे पास आईपी एड्रेस है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, राइट। सो होस्ट क्या करेगा, ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बोलेगा कि भाई हाँ दे दो तुम्हारे पास है, तो होस्ट will request. So the DHCP request will be passed from the host and DHCP server sends address with the we can say DHCP acknowledgement. तब क्या करेगा कि जब होस्ट रिक्वेस्ट करेगा with the help of DHCP request message, at that time the DHCP server sends an acknowledgement that is with the help of DHCP ACK and gives an IP address to the DHCP host, right? So in this way the DHCP work. पहले क्या होगा, डिस्कवर होस्ट ब्रॉडकास्ट करेगा, यानी कि एक डिस्कवर मैसेज भेजेगा कि दैट यस आई वांट आईपी एड्रेस, आई वांट आईपी एड्रेस। DHCP सर्वर वो ब्रॉडकास्ट मैसेज सुन लेगा और बोलेगा कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तब उसे पता चलता है कि भाई यहाँ से आईपी एड्रेस मिल सकता है, तो होस्ट रिक्वेस्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ DHCP रिक्वेस्ट एंड देन सेंड्स एन एक्नॉलेजमेंट बाय द सर्वर, दैट इज द DHCP ACK। मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप एक स्टोरी के फॉर्म में उसको याद रख सको, उसको समझ सको, राइट। So the same thing which I have said, broadcast that is there a DHCP server out there, right? Client ऐसा मैसेज भेज रहा है DHCP सर्वर, राइट। तो सर्वर क्या कर रहा है, ऑफर मैसेज दे रहा है, yes I am DHCP सर्वर, I here the IP address you can use, मेरे पास IP एड्रेस है तुम यूज कर सकते हो, राइट। तो क्लाइंट क्या करेगा, ओके आई विल टेक दैट IP एड्रेस विद द हेल्प ऑफ DHCP रिक्वेस्ट मैसेज। तब DHCP सर्वर उसको देता है that you got the IP address with the help of DHCP ACK. So this is the client server scenario. So ये आपको याद रखना है, this will help you. So the same thing is given over here. Okay, so यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पे सिर्फ एक पीसी के फॉर्म में दिया है, बाकी सारी चीजें सेम है। यहाँ पे जो ये सर्वर दिख रहा है वो DHCP सर्वर है और बाकी सारे जो पीसीज है वो नेटवर्क में कनेक्टेड है। एक सर्वर जो होस्ट जो है वो किसी वी कैन से ब्रॉडकास्ट करता है रिक्वेस्ट, तो वो DHCP के वहां से रिप्लाई आता है और सारे पीसीज जो रिक्वेस्ट की थी वो सारे पीसीज को वो IP एड्रेस असाइन करता है। सो आई होप दिस इज क्लियर कट टू एवरीबडी। Just let me know in the chat box. Okay, so just write your enrollment number in the chat box.
And now we have a session as per mentioned in the regular timetable. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, can you please tell what is the syllabus of mid 2? Chapter number 4 and chapter number 5. चैप्टर नंबर 4 विल बी कंप्लीट टुडे, राइट. हमारा जो Okay, ma'am. नेक्स्ट Thank you. सेक्शन है उसमें 20 मिनट्स लगेंगे. देन आफ्टर विल स्टार्ट चैप्टर Yes. नंबर 5. सो इन दिस वीक chapter number 5 will be over. You have to submit the practicals before 8th में. उसके पहले सारे हो जाएंगे हमारे. Ma'am, but chapter number 5 will be completed till Sorry, mid-sem, sorry. right? You will complete chapter 5 before the exam, I'm asking. Yes. Before it will be completed. It is very small chapter and it will require only 2 or 3 sessions. Okay, ma'am. Hmm. Thank you.